हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT शिलचर की, जो कि लोकेटेड है आसाम में। तो इसका पीएचडी एडमिशन फॉर्म आ चुकी है, पीएचडी एडमिशन नोटिस एक्चुअली। सो एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन ये जनवरी टू जून 2026 सेशन के लिए है, बट अभी से फॉर्म फिलअप हो रही है। सो आइए देख लेते हैं फुल एडमिशन क्राइटेरिया एंड एडमिशन नोटिस को देख लेते हैं। So applications are invited for admission to PhD program in the following departments with the area, specialization and admission group as mentioned in the table for session January to June 2026. So admission group, there are two groups of admission to the PhD program. Group A होगा with fellowship and group B होगा without fellowship. Okay, group B without fellowship. सो ग्रुप ए का पहले देख लेते हैं। पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर कैटेगरी हु मे रिसीव फेलोशिप फ्रॉम द MOE, CSIR, UGC or any other recognized funding agency. Fellowship as per MOE, CSIR और UGC गाइडलाइन के बेसिस पे होगा। रिसर्च फेलोशिप इज अवेलेबल टू द स्कॉलर्स हु आर एडमिटेड टू द PhD programs in different departments subject to the availability as stipulated by Ministry of Education. The award and renewal of the fellowship is as per the guidelines issued by the MOE from time to time. In case of student who secure a new job or otherwise wish to move outside the institute and end their doctoral program prematurely, need to refund any fellowship received. Okay. सो एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन इन ग्रुप ए, जो कि फेलोशिप वाला होगा, उसका एलिजिबिलिटी क्या है पहले देख लेते हैं। ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप ए मस्ट अपीयर द सेंट्रलाइज रिटन टेस्ट एट NIT। ओके, सेंट्रलाइज रिटन टेस्ट, जो भी शॉर्टलिस्टेड होगा अप्लाई करने के बाद उसको रिटन टेस्ट में बैठना पड़ेगा NIT शिलचर के। इन एडिशन टू द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, students for admission into PhD programs in engineering departments must satisfy one of the following criteria. So ME or MTech or equivalent with GATE, NIT qualification, appropriate national level examination, centralized written test at NIT Silchar in an appropriate area with a minimum CPI of 6.5 or equivalent to 60% mark. For SC/ST PWD candidates 5% रिलैक्सेशन होता है, तो 55% हो गया एंड 6 पॉइंट होगी। सो BE BTech with an excellent academic record with valid GATE score and with a CPI of at least 8 होना पड़ेगा और इक्विवेलेंट टू 75%। एंड यहाँ पर भी 5% रिजर्वेशन है, सो 55% हो गया। So students for admission into the PhD program in science departments must have a master degree in the relevant discipline, get UGC CSR and BHM NET score and appropriate national level examination से होना पड़ेगा for admission with a minimum CPI of 6.5 or equivalent 60%। for SC/ST PWD same 5% relaxation हो जाएगा। Students for admission into the PhD program in Department of Management Studies must have a master degree in business administration or master degree in engineering or technology with a minimum CPI of 6.5, 60%। और यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरी सच एज SC, ST, PWD कैंडिडेट्स। ओके, अदर्स का यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो doesn't know about the procedure. So students for admission into the PhD programs in departments of humanities and social sciences का must have a master degree in any relevant field with a minimum CPI of 6.5 सेम है, और 60%। और यहाँ पे मास्टर डिग्री इन अदर डिसिप्लिन विथ ए मिनिमम 6.5 और 60%। SC/ST PWD कैंडिडेट 6 पॉइंट और 55%। As score NET, GATE, UGC and appropriate national level examination, written test at NIT Silchar is required for all. So ग्रुप बी का अभी आ जाते हैं, जो कि बिना फेलोशिप वाले हैं। इसमें आता है 3 क्राइटेरिया। एक होता है रेगुलर, those regular students are work full time for their PhD and self financed। then आ जाएगा sponsored, who are employed in a central or state government, PSUs, reputed educational institute, research organization or any other organization. He or she have to least 2 years, at least 2 years of working experience. Okay, so sponsored के लिए at least 2 years of working experience होना पड़ेगा।
in the same field, last date of application. The candidate must submit the field in sponsorship letter. देन पार्ट टाइम का आ जाता है, ये होता है एम्प्लॉयड के लिए. सो यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया है, अभी देखेंगे, नॉट ओनली ट्री. So part-time categories refers to the candidates who are professionally employed personnel and they have to stay in the institute, around the institute, at least during the period of coursework so that they can attend regular classes as per the institute academic norm. The applicant must be an employee of state, central government or PSUs or any reputed institute or research institute. Okay, at least 1 year of experience. A no objection certificate देना पड़ेगा part-time candidate को from the head of the institute. Then आ जाएगा institute employees जो कि NIT Silchar के employees है. Then आ जाएगा project staff. This category refers to the candidate who work on sponsored projects in the institute. A no objection certificate from the principal investigator of the concerned project or dean must be enclosed with application form. Then आ जाएगा sponsored external registration. So candidate employed in R&D organization, educational institutes having adequate research facilities, sponsorship certificate, form 3 from the head of the organization where the candidate is employed must be enclosed at the time of the application. So eligibility for application in group B, all the shortlisted candidates for group B must appear the centralized written test. So centralized written test यहाँ पे अपेयर होना ही पड़ेगा. देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया है, लाइक स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन इनटू PhD प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, जो कि हम लोग अभी पढ़ के आ चुके हैं, ME MTech विद 6.5 और 60%. देन साइंस डिपार्टमेंट के भी पढ़ के आ चुके हैं, सेम है. मैनेजमेंट स्टडीज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस. ओके, सो द एप्लीकेशन प्रोसीजर थोड़ा सा देख लेते हैं. द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर द PhD प्रोग्राम थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अवेलेबल एट NIT Silchar. else copy the link and paste the browser. मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. सो फी होगा 1000 फॉर ओपन एंड OBC के लिए एंड 500 फॉर SC ST PWD एंड EWS के लिए. ओके, सो मस्ट बी पेड थ्रू ऑनलाइन SBI के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, SBI बैंक कलेक्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस प्रोसेस करके आपको पता ही है कर सकते हैं डायरेक्टली. सो ये हो गया. देन डेट्स के बारे में देख लेते हैं. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म टू द इंस्टीट्यूट होगा 13/11. ओके, 13 नवंबर को लास्ट डेट है. लास्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट 25/11 पे होगा. डेट ऑफ इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट बाय द डिपार्टमेंट 11-12 दिसंबर में लिया जाएगा. 12 दिसंबर में भी ले सकते हैं. डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन 19-12 में किया जाएगा. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा जनवरी में. सो सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोगों का क्लास 10 से लेके ऑल द मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स देना मैंडेटरी है. ओके, उसके बेसिस पर होगा. मार्क्स स्कोर ऑब्वियसली गेट नेट UGC स्कोर के ऊपर बेस करके होगा. सो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दिया जा चुकी है, लाइक द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेट्स विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ. ओके, सो अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा. लीगल डिस्प्यूट्स इफ एनी विल बी रेस्ट्रिक्टेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ Silchar कोर्ट ओनली. सो कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर ME MTech MSc MA MBA आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई. ध्यान रख लीजिएगा. कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू चेक द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. सो hostel accommodation is subject to availability. No TADA will be paid for attending the centralized written test at NIT Silchar. एंड देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कितना कौन कौन सी डिपार्टमेंट में एरिया ऑफ रिसर्च क्या क्या होगा. सो सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे बहुत सारे एरिया ऑफ रिसर्च दिया जा सके, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं आप लोग. देन आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का. इन सब में है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसके ऊपर आप लोग रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, ब्रॉड एरियाज है. देन आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का. ये है रिसर्च एरिया ऑफ रिसर्च, इसके ऊपर बना सकते हैं रिसर्च प्रपोजल. उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि यहाँ पर भी बहुत सारे एरिया ऑफ रिसर्च एरिया है, यहाँ पे भी बना सकते हैं. देन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. सो एरिया ऑफ रिसर्च ये सब है, देख लीजिएगा आप लोग.
देन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग साइंस है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल इंजीनियरिंग पर रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऐसा चुका है। केमिस्ट्री का बहुत सारे है, बोथ साइड में है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं आराम से। उसके बाद फिजिक्स का भी बहुत सारे होते ही है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स, थियोरिटिकल कंप्यूटेशनल कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड थियोरिटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर बहुत सारे सब फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग करा सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे बहुत सारे एरिया ऑफ रिसर्च दिया जा चुकी है, स्पेशलाइजेशन लिस्ट, उसके ऊपर बना सकते हैं आप लोग प्रपोजल। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का देख लेते हैं एक बार। मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चरल एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स, लिटरेरी एंड ट्रांसलेशन स्टडीज, ट्रांसलेशन एंड कोलोनियलिज्म, लिटरेरी हिस्टोरियोग्राफी, 1947 पार्टीशन स्टडीज, अर्बन स्टडीज, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, critical media studies, north east literature, women's writing, indigenous studies, folklore studies, eco literature. So mainly humanities and social sciences बोला जाता है, but mainly economics and जो English literature subject है उसके students ही mainly उनका ही mainly यहाँ पे subjects है। area of specialization अगर देखे तो सो मैनेजमेंट स्टडीज का भी यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन दिया जा चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। सो गाइस यही है। एंड उसके बाद स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर फुल टाइम PhD प्रोग्राम फॉर्म देख लीजिएगा, इसको आप लोगों को प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, प्रिंट आउट नहीं, इसको आप लोगों को भर के देना पड़ेगा। शुड बी टाइप्ड ऑन द लेटर हेड ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का सिग्नेचर लेना पड़ेगा स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी का, एंड ये सबमिट करना पड़ेगा आप लोगों को एग्जाम के टाइम। सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, इसके लिए भी ये है फॉर्म। यहाँ पे सब कुछ फॉर्म दिया जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए। देन ये है इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एंड ये है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फॉर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन। सो ऐसे करके इसके वो आप लोग को प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड बाय बाय।